Hello, everybody. A very warm good morning to all of you, and we welcome you to the world of ILETS webinar. These days, when the world is experiencing social distancing, our organization, ILETS Technomedia, is connecting people in this time of crisis of COVID-19 to share the best practices people are doing on ground to fight with this COVID-19 pandemic. And ILETS Technomedia is from last 17 years is doing this job of connecting people and promoting innovations. So today we have with us a very special guest. Many of you know him for his work as a CEO of Smart City Udaipur. When Udaipur was one of the, maybe now also is doing good, but that time Udaipur was one of the best doing smart cities in the country. And now he is tackling this fight against COVID-19 in the district of Jhalawar. We all welcome Mr. Siddharth Syag. Welcome, sir. Thank you, Karthik. Thank you for having me. And our pleasure, sir. And to moderate this session with Mr. Siddharth Syag, we have founder and CEO of ILETS Technomedia, Dr. Ravi Gupta, and we will request him to moderate this session and to know how Jhalawar is fighting with COVID-19 crisis. Dr. Ravi Gupta, welcome. Dhanyawad, Karthik. Thank you. And I hand over this session to you, sir. Thank you. Thank you, Karthik. Welcome, Siddharth Syag ji. Let me welcome all the audience who have joined us on Zoom and on Facebook. This interaction on the webinar is being live on our eHealth and eGov pages, and I welcome all of you. Siddharth ji, before we start discussing about the COVID situation, since our lots of viewers are online and they are meeting you first time, and many are our national viewers outside Rajasthan also. So I will request you to talk about a bit about your education and your career in IAS till now, where all have you served, so that audience will have a background about our speaker. Siddharth ji. I have done law from Hyderabad. I completed my BA LLB honors in 2009. In 2011, I got selected for IPS. I gave exam next year and then I got selected for IAS. In IAS, I've been allocated to Rajasthan cadre. My first posting was in Bharatpur, which is a town next to UP border. After that, I got posted as SDO Dungarpur, which is on the Gujarat border. It is a tribal dominated district. Then I got posted as the CEO Smart City and Commissioner Municipal Corporation of Udaipur, where I served for 3 years between 2015 and 2018. In 2018, I was made District Collector and District Magistrate of Jhalawar, where I am serving presently. Great. सिद्धार्थ जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके जिले में क्या सिचुएशन है कोविड-19 की, और क्या-क्या स्टेप्स आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लिए जा रहे हैं जिससे कि कोविड-19 की सिचुएशन कंट्रोल हो और डिसीज ज़्यादा स्प्रेड ना हो, और लोगों को जो बेसिक जो सुविधाएं हैं इस लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें जो मिल रही हैं, तो अगर इसके बारे में जो ऑल एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में बताएं प्लीज। जी बिल्कुल। हमारे जिले में अभी कुल कोरोना के 45 पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनमें से 41 अलग अलग टाइम पे ट्रीटमेंट लेने के बाद रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव पेशेंट्स 4 हैं। जिले में कुल 11 कंटेनमेंट जोन अभी तक बनाए गए हैं, जिनमें से 7 कंटेनमेंट जोन जो मुख्यालय है शहर झालावाड़ वहां पर हैं, 2 अलग अलग कस्बों में हैं जो तहसील मुख्यालय हैं उनमें, और 2 गांवों में बने हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रेवेन्यू विलेज है। तो कुल 11 में से अभी 10 जगहों पर वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव केस कोई नहीं है, लेकिन एक कंटेनमेंट जोन ऐसा है जिसमें 4 एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी वर्तमान में है। इसमें बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी ये रही है कि जितने भी ILI केसेस हैं जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहा जाता है,
उन सभी लोगों का अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग किया जाए, और जहां पर भी सिम्टम्स ज्यादा उभर के आते हैं या सिम्टम्स काफी दूसरी बार या तीसरी बार सर्वे करने पर भी वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उन लोगों की अर्ली टेस्टिंग की जाए, जिससे बहुत ज्यादा एकदम से कहीं पर बहुत सारे केसेस निकलने का या बहुत सारी आबादी में केसेस के फैलने का सिलसिला शुरू ना हो पाए। तो उसी के चलते जो हमने अलग अलग जगहों पे टेस्टिंग की है, जैसे हमारा पहला जो केस आया था वो पिड़ावा में आया था। तो एक परिवार था जो लॉकडाउन से पहले 17-18 मार्च को इंदौर गए थे, 23 मार्च को उनके घर में शादी थी, तो वो इंदौर में खरीदारी करने गए थे। तो इंदौर में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक एपिसेंटर एमपी में बन के उभरा है, जब वो वापस आए तो वो संक्रमित हो चुके थे। तो उनसे उनके परिवार में तो फैला, उनके परिवार के 13 सदस्यों में फैला, लेकिन उसके बाहर केवल 7 लोगों में फैला जो उनके पड़ोसी थे, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सका। इसी तरह से हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एक 6 महीने की छोटी बच्ची थी जो मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए आई थी। ट्रीटमेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई। जब उनका टेस्ट किया तो पता चला कि वो कोरोना का भी उनके फादर में संक्रमण था। तो उससे जो डॉक्टर्स हैं उनका टेस्ट कराया गया, तो उन डॉक्टर्स में से 10 डॉक्टर्स पॉजिटिव आए। तो हमने लगभग 300 से 400 डॉक्टर्स का, जो उस समय पे डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज, नर्सिंग स्टाफ जो उस समय काम कर रहे थे, सबका अर्ली टेस्टिंग किया, सबको होम क्वारंटाइन किया, जिससे उसका और ज्यादा फैलाव ना हो। तो वो श्रृंखला हमने उस तरह से कंटेन करने की कोशिश की। उस दौरान लगभग 1080 लोगों ने गत 3-4 दिनों में उस पेशेंट के आने के बाद ओपीडी में खुद को उन डॉक्टर्स के पास दिखाया था। उन सारे लगभग 1100 लोगों को भी हमने चिन्हित करके होम क्वारंटीन किया, ताकि वो जिन जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां पर संक्रमण को रोका जा सके। फिर इसके साथ एक जुड़ा हुआ चैलेंज ये रहता है कि जहां पर भी आप कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, वहां पर लोगों को, क्योंकि आपने उनका आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसलिए उनको रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें उनके घर पे मिल, तो इसलिए डेली सुबह उनको दूध दिया जाता है, जिसको भी जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार, और उसके बाद उनसे ऑर्डर लिया जाता है कि किराने और सब्जियों की उनको क्या आवश्यकता है। जो आवश्यकता हो वो शाम में उनके ऑर्डर के हिसाब से उसकी पूर्ति की जाती है। साथ ही क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए रोजेदारों के लिए भी शाम को फ्रूट किट्स की व्यवस्था का हमने इंतजाम किया है। तो ये सब एक बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज था, क्योंकि शहर की लगभग 15% आबादी कंटेनमेंट जोन्स के अंदर है, जो एक काफी बड़ी मात्रा हो जाती है। लेकिन उन सब का ये मैनेजमेंट कि उनको किसी भी तरह की आवश्यक वस्तुओं की कमी ना होने पाए, उसकी हमारे द्वारा कोशिश की गई। और जैसा आपने बताया कि जो डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए और पूरा जो स्टाफ है उसको भी आपको क्वारंटाइन करना पड़ा, तो आपके जिले में मेडिकल हॉस्पिटल्स कितने हैं, सरकारी अस्पताल कितने हैं, प्राइवेट कितने, और क्या इंतजाम है कि अगर कोई स्थिति और गंभीर अगर हो जाए अगर गलती से, तो उसके लिए अपने पास इंतजाम का क्या है, कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, हमारे पास कुल मिला के 63 पीएचसी और सीएचसी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील मुख्यालयों पे अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से और उस क्षेत्र की डेंसिटी के हिसाब से उनका लोकेशन पूर्व में ही निर्धारित करके उनका कंस्ट्रक्शन और उन सब में स्टाफिंग किया जा चुका है। यहाँ पे सिटी में इशू ये था कि क्योंकि मेडिकल कॉलेज से ये सारे डॉक्टर्स थे और मेडिकल कॉलेज में रफली 1500 का स्टाफ है, तो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को हमें बाकी जगहों पर जो उनका पेशेंट लोड था उसको बाकी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। तो हमने शहर के 5 निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया, और उन 5 निजी अस्पतालों में हमने 3 तरह से डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई। सबसे पहले हमने जो वहां पे निजी अस्पतालों का जो स्टाफ अवेलेबल था उसको यूज किया। फिर हमने जो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स थे, जहां से हम डॉक्टर्स को ले सकते थे बिना वहां की सेवाओं पे प्रभाव डाले हुए, उनको लिया।
और तीसरा मेडिकल कॉलेज का ऐसा स्टाफ जो उन दिनों में, जिन दिनों में संक्रमण फैला, जो स्टाफ हॉस्पिटल नहीं आया था, उस स्टाफ को भी हमने इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लगाया, जिससे सेवाएं जो दी जा रही थी मेडिकल कॉलेज में उसमें व्यवधान कम से कम पड़े और लोगों को इमरजेंसी तथा रेफरल सेवाएं निरंतरता के साथ दी जा सके। तो वो 5 निजी अस्पतालों में अभी भी ये कार्य चल रहा है। ये पहला पॉजिटिव केस हमारे यहाँ पे 24 तारीख को आया था और 25-26 के दौरान सारी टेस्टिंग होकर और हमने मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल रिड्यूस कैपेसिटी पे चलाने का निर्णय लिया था। वो 10 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो 10 तारीख के बाद से, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटीन पूरा हो जाएगा, बाकी डॉक्टर्स की टेस्टिंग हो चुकी है, तो मेडिकल कॉलेज को हम 11 तारीख से दोबारा शुरू कर पाएंगे। तो जो समस्या का पीरियड था, जो अवधि थी, उस अवधि में इस तरह से प्राइवेट लोगों की तथा ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों की सेवाएं लेते हुए उसको मैनेज किया जा सका। एक काफी जिलों में समस्या आई है पीपीई किट्स की, जो अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स की, तो वो आपके जिले में उसकी सिचुएशन क्या है? पीपीई किट्स की जो अनुपलब्धता थी वो शुरुआत में थी। लॉकडाउन जब शुरू ही हुआ था तो उस टाइम पे जरूर इसकी थोड़ी शॉर्टेज थी, लेकिन अब पीपीई किट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। बल्कि हमें अभी रिसेंटली ही 2000 पहले मिली थी, 3000 और मिली हैं। तो अभी हमारे पास अगले 15 दिन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किसी तरह की पीपीई किट्स की उपलब्धता का कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, जैसे पहले मास्क का, सैनिटाइजर्स का बहुत शॉर्टेज हो गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा, जो स्टेट ओन्ड है, उसके द्वारा सैनिटाइजर की सप्लाई शुरू की गई और अभी भी हमारे पास यहाँ पे गोडाउन में लगभग 500 कार्टन्स पड़े हुए हैं, जो कोई भी व्यक्ति यदि लेना चाहे। हमने यहाँ पे ना केवल सारी संस्थाओं को दिए हैं, बल्कि हमने केमिस्ट और फार्मासिस्ट एसोसिएशन से बात करके उन लोगों को भी ये चीज बताई है कि आप में से कोई भी यदि इनको लेना चाहे तो उनको ले सकता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये क्योंकि स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये उस नोटिफिकेशन में दिए गए दामों से, जो अधिकतम दाम उसमें निर्धारित है, उससे भी काफी कम दामों में हम संस्थाओं को और लोगों को उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो वर्तमान में उसकी शॉर्टेज का जो शुरुआत में इशू था, वो इशू ज्यादातर जगहों पर रिजॉल्व किया जा चुका है। एक और जो समस्या आई है आफ्टर लॉकडाउन की, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो रोज दिहाड़ी पर काम करता है और अपना कमाता है, वो जो है जो सेक्शन बहुत इफेक्ट हुआ है। तो उनके खाने का इंतजाम, उनके जो एसेंशियल सर्विसेज का इंतजाम, इसके बारे में कुछ बताएं। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एकदम से सारे उद्योग, सारा व्यापार बंद हो गया था, तो बहुत सारे लोग जो दिहाड़ी के ऊपर निर्भर हैं, जो रोज जो कमाते हैं उसी के आधार पर खा पाते हैं, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती खड़ी हो गई थी। इस संबंध में हमने समाज में जो एनजीओज हैं, समाज सेवक हैं, उनकी मदद ली, भामाशाह हैं, उनकी मदद ली, और सरकारी संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध थे, उन सबको, जो हमें विधायक कोष से तथा सीएम रिलीफ फंड से राशि उपलब्ध कराई गई, उस सबको मिलाते हुए हम अब तक लगभग 35 से 40 हजार राशन किट लोगों में वितरित कर चुके हैं और लगभग 2 लाख फूड पैकेट लोगों को दिए जा चुके हैं। अब चूंकि दोबारा से उद्योग खुलने लग गए हैं, नरेगा का काम शुरू हो गया है, जैसे हमारे जिले में ही 1 लाख लेबर नरेगा में दोबारा से नियोजित की जा चुकी है। तो वो बहुत बड़ी संख्या है, जो अब लोगों को दोबारा से जो रोजगार की समस्या थी, वो दोबारा से उसका सॉल्यूशन निकलने लग गया है। इसी तरह से जो किसानों की समस्या थी कि उनकी जो जीन्स है, जो फसल है, उसकी खरीद किस तरह से की जाए, तो हमने जो सरकारी खरीद होती है वो हमारे यहाँ पे 15 अप्रैल से शुरू हुई थी और अभी तक हम जो टोटल खरीद होनी है उसका आधे से ज्यादा खरीद को समाप्त कर चुके हैं, जबकि ये खरीद 15 जून तक करनी थी। पर फिर भी हमने इसको शुरुआत में ही, सेंटर्स की संख्या पहले जो 11 होती थी, हमने 26 सेंटर्स बना के, ताकि लोगों को ज्यादा दूर ना आना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके, डिसेंट्रलाइज कर दिया व्यवस्था को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
किसान अपना सामान बेच पाएगा, उसकी राशि आएगी तो वो इकोनॉमी चल पाएगी, नरेगा का काम चलेगा, उद्योग चलेंगे, तो जो गांव की लेबर है वो नरेगा में नियोजित होके, और जो शहरी लेबर या अन्य मजदूर हैं वो उन उद्योगों में नियोजित होके दोबारा से अपनी आजीविका अर्जित कर पाएंगे। तो अभी जो पार्शियल एग्जिट की जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जिसमें अलग अलग जोन्स हैं, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, अलग अलग जोन, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस जोन में है और किस है लेवल का लॉकडाउन एग्जिट पॉलिसी आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ। हमारा जिला अभी रेड जोन में है क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स के संक्रमण होने का इशू आ गया था, और एक साथ हमें जो कंटेनमेंट जोन है, पहले हमारे यहाँ एक कंटेनमेंट जोन था, एक से बढ़कर सीधा 10 कंटेनमेंट जोन हो गए थे कि वो डॉक्टर जहां जहां रहते थे शहर के उस एरिया में कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। परंतु स्थिति काफी हद तक वर्तमान में नियंत्रण में आ चुकी है। फिर भी एहतियात के तौर पे जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ पर 5 नगर पालिकाएं हैं, उन नगर पालिका क्षेत्रों में वर्तमान में दुकानें जो बाजार में स्थित हैं उन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, और जो व्यक्तियों के द्वारा अपने घर से ऑफिस तक आने जाने के लिए जो आवागमन का कोई भी साधन हो उसका उपयोग किया जा रहा है, उसमें भी कितने लोग आ जा सकते हैं उसकी मात्रा को रेगुलेट स्ट्रिक्टली किया जा रहा है कि एक 2 व्हीलर पे केवल 1 व्यक्ति और 4 व्हीलर में ड्राइवर प्लस 2 व्यक्ति, उससे ज्यादा लोगों को उसमें नहीं लेके जाया जा सकता। ऑफिस की स्ट्रेंथ भी लिमिटेड है कि यदि आप कोई भी ऑफिस संचालित करते हैं तो उसमें 33% से ज्यादा वर्कर्स को आप एक टाइम पे नहीं बुला सकते। उद्योगों में भी आपको स्टैगर इस तरह से करना पड़ेगा कि लोगों को के आने जाने का टाइम अलग अलग हो और उनका जो लंच ब्रेक वगैरह भी है वो अलग अलग हो, ताकि एक टाइम पे लोग एक जगह पे इकट्ठे होने का कम से कम हम उसको मिनिमाइज कर सकें। और कैसे आप ये जो अभी जो सिचुएशन है कि अभी ये पार्शियल लॉकडाउन ओपनिंग है, तो अभी आपके हिसाब से जो प्रोजेक्शन है कि हाउ ये कब तक और इसमें ढील होगी और कब तक और जो आपके यहाँ इंडस्ट्रीज हैं खासकर जो मेजर रोजगार देती है तो वो कब तक फुली ऑपरेशनली ओपन हो पाएंगी? देखिए, इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ओपन अप होनी स्टार्ट हो गई हैं। इंडस्ट्रीज का क्योंकि लास्ट जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की इंडस्ट्रीज को रिलैक्सेशन दे दिया गया था, और इस बार जो 3 तारीख को रिलैक्सेशन दी गई हैं उसमें अर्बन सेंटर्स पे भी जो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल जोन में है या रिको क्षेत्र में है, उसके अलावा वो इंडस्ट्रीज जिनका कंटिन्यूअस उत्पाद चलता है, कंटिन्यूअस नेचर की इंडस्ट्रीज है, जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई, केमिकल की इंडस्ट्रीज होगी जिसमें आपको प्रोडक्शन साइकिल कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा, उन सबको अनुमत किया गया है। हमारे यहाँ पे 2 मेजर उद्योग हैं, एक टेक्सटाइल है जिसकी 2 मेजर मिल्स हैं जहाँ पे लगभग 6 से 7 हजार लोगों को नियोजित किया जाता है, और उसके अलावा छोटे छोटे कोटा स्टोन के कई सारे यूनिट्स हैं जिनमें लेबर कम लगती है परंतु उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों को ही इनके चलाने के लिए जो शुरुआत में रिलैक्सेशन दी गई थी उसके अनुसार अनुमति देते हुए वापस से शुरू कर दिया गया है। तो मैक्सिमम लेबर का नियोजन स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं कि लेबर को आपको लाने ले जाने के लिए व्यवस्था रखनी पड़ेगी, या ज्यादातर लेबर को आप ऑन साइट रुकवाएं ताकि उस लेबर से बाकी जो पॉपुलेशन है उसमें संक्रमण फैलने के चांसेस कम से कम रहे। और ये बताएं कि बहुत से जिलों में ऐसा देखा गया है कि जहां पर संख्या कोविड-19 की बहुत ही कम थी, लेकिन सरप्राइजिंगली अचानक वहां पर नंबर्स बढ़ गए। तो आपको तो ऐसी स्थिति आपके यहाँ पर ना आए तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? उसके लिए अर्ली टेस्टिंग एंड राइट टेस्टिंग, यही 2 तरीके हैं। इनसे मतलब है कि अगर आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति में लक्षण आ रहे हैं और वो जाके पीएचसी या सीएचसी पे खुद को दिखाता है और बताता है कि मुझे खांसी की दवाई चाहिए या जुकाम की दवाई चाहिए या बुखार की दवाई चाहिए, तो उस पेशेंट की आप ट्रैकिंग शुरू कर दें कि उस व्यक्ति को क्या
ये नॉर्मल सर्दी खांसी थी या वो सर्दी खांसी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी नहीं जा रही है, और यदि उस तरह के सिम्टम्स आप देखें तो उन सिम्टम्स का टेस्ट जरूर करा लें। सेकेंडली, यदि कोई भी डेथ हो रही है और उस डेथ में आप इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं कि उनको फीवर या खांसी सर्दी भी था, तो उसकी डेफिनेटली उस टेस्टिंग हो जाए, ताकि वो आपको एक सिग्नल हो सकता है जिससे आपको केस के बारे में पता चल जाए। थर्डली, जो आपके कंटेनमेंट जोन्स हैं, उन कंटेनमेंट जोन्स में प्रॉपरली टेस्टिंग हो जाए, उन लोगों की कॉल डिटेल के आधार पर कि वो लोग कहीं बाहर गए हैं या नहीं गए हैं, उनके रिश्तेदारों से, आस पड़ोस वालों से खुद बात करते हुए उनसे पूछा जाए, क्योंकि लोग कई बार जैसे ही उन्हें पता चला है कि उन्हें कोरोना हो गया है तो व्यक्ति घबरा जाता है, तो वो कई बार पूरी चीज याद भी नहीं कर पाता कि वो पिछले 5 दिन 10 दिन में किससे मिला है, और कई बार घबराहट में भी कुछ चीजें नहीं बता पाता। लेकिन उसके जो घर में रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों से भी बात करके यदि वो श्रृंखला कि उस व्यक्ति के संपर्क में कौन कौन लोग आए थे, उस श्रृंखला को आप इस्टेब्लिश अर्ली कर पाते हैं, उन सारे लोगों को क्वारंटीन कर पाते हैं, उन लोगों के सैंपल ले पाते हैं, तो आप बहुत हद तक केसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे दूसरा जो फायदा मिलता है वो ये है कि यदि आपने पॉजिटिव केस इस्टेब्लिश कर लिया, तो उनके संपर्क में आए लोगों का जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव केस आए, उनकी माताजी उनके साथ रहती हैं और माताजी की आयु 80 वर्ष है, तो वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं। यदि उस केस का डिटेक्शन डिले हो जाता तो उनकी हो सकता है कि घर में सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल उनकी माताजी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए वो डिले डेंजरस हो सकता था। परंतु अर्ली डिटेक्शन से उस परिवार में रह रहे लोग, उसी छत के नीचे रह रहे लोग तथा आस पड़ोस में जो वल्नरेबल लोग हैं, उन लोगों को पहले से देखा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जो भी चिकित्सा सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी है वो उपलब्ध कराई जा सकती है। टेस्टिंग के बारे में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जिलों में अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, और तो इस बारे में आपके जिले का एक्सपीरियंस क्या है, और क्या इनफ फैसिलिटी है, क्या इनफ मैन पावर है, और टेस्टिंग रेट क्या है, दर क्या है आपका? हमारे यहाँ पे टेस्टिंग कंटिन्यूअसली शुरुआत से बढ़ी है, बल्कि अगर आप पूरे राजस्थान का ही उदाहरण लें, शुरुआत में हम बाकी स्टेट्स के मुकाबले हमारी टेस्टिंग की दर कम थी पहले हफ्ते 10 दिन में। केरला की टेस्टिंग रेट और ओवरऑल टेस्टिंग भी, क्योंकि केरला की आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, राजस्थान की 7 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन कम जनसंख्या होने के बावजूद भी केरला ने हमसे अधिक टेस्ट किए थे शुरुआत के हफ्ते 10 दिन में। परंतु अब स्थिति ये है कि केरला में लगभग 35 से 40 हजार टेस्ट ही हुए हैं और राजस्थान में 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं। ये जो टेस्ट हुए हैं, ये लगभग सभी जिलों की जो टेस्टिंग एवरेज है वो टेस्टिंग एवरेज बढ़ी है। भारत की जो ओवरऑल टेस्टिंग एवरेज है वो लगभग 780 पर 10 लाख पॉपुलेशन, पर मिलियन पॉपुलेशन की है, और हमारे यहाँ पर भी जो टेस्टिंग हो रही है वो टेस्टिंग उस अनुपात की एवरेज से बेटर हो रही है। जैसे हमारे जिले में अभी तक लगभग हम 3000 से ज्यादा टेस्ट कर चुके हैं, और कुल आबादी जो है वो 15 लाख है पिछले सेंसस के हिसाब से। तो आप अगर उसको 17 लाख भी मान लें तो आपकी पर मिलियन जो टेस्टिंग है वो लगभग 1500 की है, अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ लगभग 800। तो हम नेशनल एवरेज से तो ज्यादा टेस्टिंग कर ही कर रहे हैं, बट ओवरऑल स्टेट भी नेशनल एवरेज से अधिक कर रहा है, तथा बाकी राज्य जो हमसे अधिक टेस्टिंग पहले कर रहे थे उनसे भी अधिक कर रहे हैं। और शुरू में टेस्टिंग किट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, और टेस्टिंग के लिए जो मैन पावर है उसकी भी जो इश्यूज आ रहे थे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जिलों में। तो आप क्या सिचुएशन है उस बारे में? हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज पूर्व में स्थापित है, जहाँ पर IDSP के तहत जो इन्फेक्शियस डिजीज की सर्वेलेंस प्रोग्राम है उसके तहत पहले से ही यहाँ पर लैब एस्टैब्लिश थी, और उस लैब को शुरुआती दौर में ही, जब शुरुआत में भारत में लगभग 150-200 लैब्स को आइडेंटिफाई किया गया था, तो उसमें झालावाड़ की लैब भी आइडेंटिफाइड थी। हमारे यहाँ पे जो HOD माइक्रोबायोलॉजी हैं डॉक्टर योगेंद्र तिवारी,
उनके द्वारा इस पूरी लैब का संचालन किया जाता है और उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी लैब का वर्क पावर का मैनेजमेंट किया है और बहुत उन्होंने ऐसे सुझाव भी दिए हैं जिन सुझावों के कारण, जैसे पूल टेस्टिंग करने में उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले पूल टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, जयपुर जोधपुर के बाद सबसे अधिक मात्रा में और सबसे शुरुआती दौर में उनके द्वारा ही उसका स्टार्ट किया गया था। तो हमारी जो लैब है वो वेल फंक्शनल, वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल लेड लैब है, जिसमें हमें टेस्टिंग के लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा जो टाइम लैग है वो भी हमारे यहाँ पे किसी भी सैंपल की टेस्टिंग में 1 दिन से ज्यादा का डिले नहीं होता। जो सुबह सैंपल आ जाते हैं वो शाम तक टेस्ट हो जाते हैं, जो शाम तक सैंपल आते हैं वो भी अगले दिन टेस्ट हो जाते हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा हो सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए। एक सवाल जो हर जनता के मन में आ रहा है, जो बार बार हम लोग विदेशों की स्थिति देख रहे हैं और हर भारत में देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर जो है वो जीविका की समस्या है, इसलिए फैक्ट्रीज ओपन हो रहे हैं, ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं, पार्शियली ओपन हो रहे हैं। तो एक जो जद्दोजहद है कि जान और जहान के बीच की जो कश्मकश है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे अपने जिले में देख रहे हैं कि इन दोनों चीजों के बीच में जो बैलेंस कैसे होगा, लाइफ एंड लाइवलीहुड के बीच के जो लड़ाई है? कह रहे हैं आज के दिन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि लोगों की जान को भी सुरक्षित रखना है और उनकी आजीविका को भी बनाए रखना है, क्योंकि उस आजीविका के थ्रू ही उस जान की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की जा सकती है। बिकॉज फूड सिक्योरिटी इज लिंक्ड विद लाइवलीहुड एंड लाइवलीहुड इज द बेस ऑफ योर ओवरऑल वेलफेयर। अगर लाइवलीहुड्स नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज बंद होने लग गई या छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद होने लग गया या लोन के डिफॉल्ट स्टार्ट हो गए और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, जिनमें एनपीएस ऑलरेडी बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, अगर और लोन डिफॉल्ट स्टार्ट हो गए तो बैंक्स के जो खुद का स्वास्थ्य है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ओवरऑल परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी एक उस स्टेज पे है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो स्लो डाउन हो रहा था उस स्लो डाउन के कारण कुछ सेक्टर्स को कंटिन्यूअसली हमने प्रॉप किया है, उन्हें जो समर्थन मिलना चाहिए था वो समर्थन दिया है, जिससे इकोनॉमी कुछ हद तक ओवर एक्सटेंडेड है। तो ऑल्दो आरबीआई के द्वारा अभी एक इजी मॉनेटरी पॉलिसी लागू की गई है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, परंतु हमारे जो आर्थिक मैक्रो स्तर पे अगर देखा जाए जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए हमें यह फैसला लेना पड़ेगा कि हम इकोनॉमी को किस हद तक चालू करते हैं। इस फैसले को लेने के लिए जो डेटा सेट हमें चाहिए वो डेटा सेट 2 चीजों से आधारित होगा कि वर्तमान में हमारी कितने प्रतिशत आबादी जो शहरी केंद्रों में रह रही है, जैसे जयपुर में, जोधपुर में, इंदौर में, बॉम्बे में, उसमें कितना संक्रमण हुआ है और उस संक्रमण के कारण हॉस्पिटल में कितने लोग आए, हॉस्पिटल कैपेसिटी ओवरवेल्म तो नहीं हुई, और उन केसेस में से कितने मौत के प्रकरण आए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इंदौर के लिए अभी 1 सप्ताह पहले रिपोर्ट आई थी कि इंदौर में जो टेस्टिंग हुई है उन टेस्ट में से लगभग 20% लोग पॉजिटिव आए हैं, जो एक बहुत बड़ी मात्रा है, जो सजेस्ट करता है कि शहर में काफी संक्रमण फैला हुआ है। कल रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में कि मुंबई में 15% लोग जिनके सैंपल लिए गए उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो अगेन एक बहुत बड़ी मात्रा है। और ये आरटीपीसीआर टेस्ट पे आधारित है। आरटीपीसीआर टेस्ट आपको केवल ये बताता है कि आप वर्तमान में इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। इसमें उन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाती जो लोग इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुके हैं। तो हो सकता है, हालांकि ये टेस्टिंग मोस्टली कंटेनमेंट जोन्स और उनके आसपास के इलाकों में हुई है, परंतु ये संख्या उससे ज्यादा, तो हमें उस डेटा सेट को लेना होगा और ये देखना होगा कि ये जो संख्या है
इतने लोगों की, उससे हमारे हॉस्पिटल सिस्टम पे कितना प्रभाव पड़ा है और कितनी मौतें हुई हैं, और क्या वो स्थिति ऐसी है कि यदि वो क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो यदि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है तो हमें किस हद तक अपने हेल्थ सिस्टम को तैयार रखना पड़ेगा। दूसरा इसमें पहलू ये भी है कि विदेशों के मुकाबले हमारे यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या और सीवियर सिम्टम्स पेशेंट्स की और मोर्टेलिटीज की संख्या काफी लिमिटेड है। यदि आप न्यूयॉर्क का उदाहरण लें, न्यूयॉर्क में अभी उन्होंने एक स्टडी कराई जिसके अनुसार ये पाया गया कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर लगभग 20% लोग संक्रमित हैं पूरे शहर के अंदर, ना केवल सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में। तो उस चीज को यदि देखा जाए तो वहां पे 300,000 मतलब 3 लाख लोग ऑलरेडी पॉजिटिव उन्होंने टेस्ट कर लिए हैं, परंतु इस स्टडी के हिसाब से लगभग 20 लाख पॉजिटिव बनते हैं और वहां पर लगभग 9,000 लोगों की मृत्यु वर्तमान में हुई है। परंतु हमारे यहाँ पर आप अगर बॉम्बे का जैसे उदाहरण लें कि 15% पॉजिटिविटी रेट आ रहा है या इंदौर में 20% आ रहा है, उसके हिसाब से आप मोर्टेलिटी रेट देखें तो वो उतना अधिक नहीं है। तो हमारे लिए एक थोड़ा सा रिलीफ का विषय है, लेकिन फिर भी हम इसमें कंप्लेसेंट नहीं हो सकते क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि यदि 0.1% भी उससे मोर्टेलिटी रेट है तो वो भी कुल संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि हमें उसके लिए समाज को, और वो बहुत हाई रिस्क पॉपुलेशन है, कि हमें उनको बचाना आवश्यक है। पर उस डेटा सेट का हमें उपयोग करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करते रहने के लिए और जान और जहान, लाइव्स और लाइवलीहुड में आवश्यक बैलेंस को ढूंढने के लिए। कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं। आपके बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे एक बटन है Q&A, तो उसको अगर देखिए एंड कुछ क्वेश्चंस आप एनीवे एड्रेस कर चुके हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट सम क्वेश्चंस आर न्यू। एक सवाल है रिगार्डिंग टूरिज्म, जो बहुत एंड में सवाल है, ठीक है। जो इन योर स्टेट मेजर रेवेन्यू है टूरिज्म का, एंड ये डॉक्टर निशा जिंदल का सवाल है नीचे में। तो राजस्थान has plenty of tourism places, जी। Yeah, what is the impact? जो सवाल पूछा है, ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान में बहुत सारे देसी और विदेशी टूरिस्ट आते हैं। जैसे मैं उदयपुर में था पिछले 3 साल, तो वहां पे लगभग 10 लाख सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं, जिनमें से 9 लाख टूरिस्ट और लगभग 1 लाख विदेशी टूरिस्ट हैं। और बहुत सारे लोगों की जीविका टूरिज्म पे निर्भर है। लेकिन टूरिज्म को हमें, क्योंकि अभी इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट वर्तमान में बंद है, तो टूरिज्म को ग्रेडेड मैनर में ही हम ओपन अप कर पाएंगे। जो अच्छी चीज है वो ये है कि राजस्थान का टूरिज्म सीजन अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक चलता है मुख्यतः। उसके अलावा भी रेगुलर कुछ लोग आते हैं, बट मेनली टूरिज्म सीजन उस टाइम तक होता है। वी आर होपफुल कि कोरोना की जो पीक है वो अगले सीजन की शुरुआत से पहले आ चुकी होगी। हमारे पास और ज्यादा डेटा होगा इससे डील करने के लिए। होपफुली कोई वैक्सीन भी उस समय तक तैयार हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों से, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट से, इजराइल से बहुत सकारात्मक खबरें आ रही हैं जिनकी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुकी है। तो वो चीजें अगर सामने आती हैं तो हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को उन सारे एहतियात को इस्तेमाल में लेते हुए, प्लस जो हमारे पास तब तक का डेटा जनरेट होगा उसके थ्रू क्या हम हेल्प दे सकते हैं, वैक्सीन्स की मदद किस तरह से ली जा सकती है, उन सारी चीजों को यूज करते हुए होपफुली बिफोर न्यू सीजन स्टार्ट्स हम उन चीजों को एड्रेस कर पाएंगे। 2-3 सवाल हैं जो लॉकडाउन से रिलेटेड है, और सवालों का क्रक्स ये है कि लॉकडाउन के बावजूद नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये 3-4 सवाल ऐसे। देखिए, उसका सबसे मेजर कारण ये है कि जैसा आपने सुना होगा, ICMR में डॉक्टर गंगा खेडकर
उनके द्वारा ये बताया गया है कि भारत में लगभग 80% जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। तो एसिम्प्टोमेटिक केस का डिटेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी आपके घर में जाके पूछ रहा है कि आपको कोई लक्षण है, आप उसका जवाब ना में देंगे। आपको डिटेक्ट करने का कोई इस तरह का मैकेनिज्म है ही नहीं, क्योंकि पहले हम थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे। थर्मल स्क्रीनिंग लक्षण आधारित स्क्रीनिंग है। यदि 80% आबादी में लक्षण नहीं होंगे तो उस चीज को बल्कि हमें दाद देनी पड़ेगी कि जो लॉकडाउन हुआ है अभी तक और जो स्टेट्स ने कर्व को ऑलमोस्ट एक लीनियर प्रोजेक्ट्री पे रखा है, क्योंकि यदि अभी तक एक्सपोनेंशियली ग्रो होना स्टार्ट होता तो हम हो सकता है कई लाखों केसेस तक पहुंच जाते। तो उसकी ग्रोथ को स्लो तो किया गया है, पर उसका जो आपका सवाल है कि एलिमिनेट क्यों नहीं हो पाया है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि 80% आबादी एसिम्प्टोमेटिक है और उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत बड़ा वो चैलेंज है, जो अभी तक उसका इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया है। एक सवाल और है जो कि जो आपने अभी बोला, मोर्टेलिटी रेट इंडिया में लो है, तो उस पे आपके विचार क्या है, क्यों ऐसा? आई थिंक इसके ऊपर लोगों ने 2-3 तरह की अटकलें लगाई हैं कि क्योंकि मलेरिया का यहाँ पर काफी फैलाव है, बहुत सारे लोगों ने मलेरिया की जो मेडिसिन है HCQ उसका किसी ना किसी फॉर्म में ट्रीटमेंट लिया हुआ है। BCG के बारे में कुछ लोगों ने अटकलें लगाई हैं कि BCG वैक्सीनेशन के कारण कुछ इनबिल्ट इम्यूनिटी हो सकती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि स्वाइन फ्लू और जो अदर वायरस रिलेटेड इलनेसेस हैं, क्योंकि वो इतनी वाइड स्प्रेड है, उनके थ्रू एक नेचुरल इम्यूनिटी या जो डस्ट इंडिया में जनरली है उसके थ्रू नेचुरल इम्यूनिटी शायद बिल्डअप हो गई हो। परंतु ये सारे अभी हाइपोथेसिस हैं, इनमें से किसी को भी पीयर रिव्यू डबल ब्लाइंड स्टडी में पूर्ण रूप से टेस्ट नहीं किया गया है, तभी हम किसी भी उसमें ये आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते कि ये कारण है जिस वजह से मोर्टेलिटी कम है। परंतु ये जरूर है कि मोर्टेलिटी रेट अभी तक बहुत कम है और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या बहुत हाई है। तो ये दोनों भारत के लिए राहत भरी खबरें हैं, परंतु हमें अपना जो एहतियात है, जो गार्ड है, उसको हम नीचा नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है कि आईटी का यूज ऐसे डिजास्टर सिचुएशन में कैसे आप लोगों ने यूज किया? आईटी का राजस्थान में काफी अच्छा यूज हुआ है। जो लोग होम क्वारंटीन में हैं, उन लोगों को होम क्वारंटीन उनके नाम, नंबर, लोकेशन आइडेंटिफाई करके लैट लॉन्ग और एक सॉफ्टवेयर में डाला गया है, और यदि वो व्यक्ति, उनकी ऐप के माध्यम से ये डिटेक्ट किया जाता है कि यदि वो व्यक्ति क्वारंटीन एरिया को यानी अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर जाता है, तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, जो रिपोर्ट सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर्स के साथ शेयर हो जाती है कि ये व्यक्ति क्वारंटीन से बाहर गया था, जिससे उसकी जांच हो जाए और क्वारंटीन के पूर्ण रूप से फैलना हो। साथ ही वीसीज का उपयोग इस समय में बहुत अधिक मात्रा में किया गया है ताकि फिजिकल मीटिंग्स की जरूरत कम से कम रहे। क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद, इस कोविड के बाद ई गवर्नेंस का उपयोग सरकार में और बढ़ेगा, जो और वर्क फ्रॉम होम होने की उम्मीद है, इंक्रीज होने की उम्मीद है? आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली जिन फील्ड्स में भी ये किया जा सकता है उसमें ऑलरेडी इसके ऊपर विचार शुरू हो गया है, और इस फील्ड में और ज्यादा काम हम आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की अनुपालना अपेक्षित की जा रही है और अगले कुछ महीनों में वो हमारी लाइफ का एक भाग बन जाएगा, तो उसका आवश्यक काउंटर पार्ट है कि हम उस तरह की सुविधाएं भी अपने वर्कर्स को कराएं और वर्क प्लेसेस में मौजूद हों, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा ई गवर्नेंस के माध्यम से या वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से वो काम करने का, यदि वो कर पाते हैं, यदि काम का नेचर उस प्रकार का है, वो काम करने की सुविधा दी जाए। एक जो ये सवाल आपने जो देखा था ये टूरिज्म के ऊपर, तो आज के दिन जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल प्लेसेस है, जैसे
रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वेडिंग हॉल्स है, ये सारे बंद है। तो ये आप इनकी क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि इनका जो कब तक ये लोग स्टार्ट हो पाएंगे? आपका प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, इसमें कोई भी प्रिडिक्शन इस समय पे थोड़ा प्री मैच्योर होगा, बट आई थिंक हर एक श्रेणी के व्यवसायी एंटरप्रेन्योर के लिए कोई ना कोई जो उनका सॉल्यूशन है वो बनाया जाएगा। जैसे मैरिज हॉल्स के लिए अभी वर्तमान में शादियों को अलाउ किया गया है, परंतु इसकी संख्या 50 रखी गई है। सैनिटाइजर्स का उपयोग आवश्यक किया गया है। जो व्यक्ति खाना बना रहे हैं उन व्यक्तियों की स्क्रीनिंग हो जाए, इस चीज का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का क्रू है, कहीं पे 5-5, 7-7 लोग होते थे, वो यदि कम व्यक्तियों के थ्रू किया जा सकता है, उस चीज का ख्याल रखा जाए, तो ऑलरेडी वो चीजें स्टार्ट हो रही है। रेस्टोरेंट्स के लिए टेक अवे की ऑप्शन दी गई है कि कोई भी रेस्टोरेंट टेक अवे के लिए अभी भी संचालित कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें अपने बिजनेस मॉडल्स को भी अगले कुछ महीनों में इस डिजीज को काउंटर करने के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। परंतु कोई भी बिजनेस सरवाइव ना करने वाली स्थिति में ना आए, इसके लिए जो उनको छूट देनी है वो किस डिग्री तक देनी है कि वो आवश्यक बैलेंस बन पाए, वो सेक्टर बाय सेक्टर एंड ऑल्सो सिटी बाय सिटी निर्धारित करना पड़ेगा, जिससे हम लाइव्स और लाइवलीहुड्स का अगेन जो आप बात कर रहे थे वो बैलेंस बना पाए। तो इसके साथ हम लोग ऑलमोस्ट सारे जो सवाल जो लोगों ने पूछे हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। तो हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और उसको करने से पहले सिद्धार्थ जी, ये जो इलेट्स का एफर्ट है कि हम लोग जो सरकार की जो एफर्ट्स हैं, सरकार की जो स्टेप्स हैं, उसको हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में आप अपने 2 शब्द कहें। ये बहुत सराहना के योग्य है, बिकॉज इस समय सभी सरकारों का यही ध्येय है कि वो जानकारी को, जो एक्यूरेट जानकारी है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों में कोई भी भ्रम ना रहे, किसी तरह का कोई डर ना हो। आप लोग भी इस श्रृंखला में जो प्रयास कर रहे हैं कि आप अलग अलग जिलों के अधिकारियों से बात करते हुए सीधा उन्हें जनता से जोड़ पा रहे हैं, ताकि जनता के मन में जो सवाल है वो उन सवालों को पूछ पाए, उनके जवाब मिल पाए। आई थिंक ये काफी सराहनीय पहल है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, और धन्यवाद ऑल द ऑडियंस जो हम लोग को आप अभी लाइव देख रहे हैं। और अगर आप लोग को ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक और शेयर करें, जिससे जो जनता में और अवेयरनेस हो कि हमारी जो अलग अलग जिलों की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं टू हेल्प द सिटीजन्स टू कॉम्बैट द कोविड-19 सिचुएशन। विद दिस हम लोग इसको एंड करते हैं और नमस्कार सिद्धार्थ।